tendency, arithmetic mean. This is the name of the chapter. मीन सुना आप लोगों ने 10th क्लास में? मीन सुना है बच्चों? तो जो मीन आप लोगों ने 10th क्लास में किया, अब हम उसकी कुछ ब्रॉडर टर्म स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, करेंगे मीनिंग, बट कुछ और एडिशंस होंगे क्योंकि 10th में तो आपने बिल्कुल सिंपल लेवल वाला मीन किया हुआ है। तो +1 में हम थोड़े से इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करेंगे कि मीन को हम लोग किस किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, राइट? So Disha and Tanvi, nahi Tanvi, you were already present in the class. Disha, bachcha, you joined the class. I have given the introduction of the topic. There is 2 books in economics. First is statistics, second is microeconomics. Today we are starting with statistics, and in statistics we have total 13 chapters beta, जिसमें से I am starting with 9 chapters because ये एक numerical chapter है और 10th class में आप लोगों ने already किया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड और फर्दर टर्म्स, एक्सटेंडेड टर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे, इसीलिए मैंने ये चैप्टर को आज की क्लास में स्टार्ट किया है। हाँ, बाकी जो आप लोगों का स्कूल का सिलेबस होगा मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि मैम दिस चैप्टर इज कमिंग इन आवर कोर्स, सो वी विल बी डूइंग दैट, ठीक है? आई ट्राई टू कोप अप विद द सिलेबस ऑफ एवरी स्टूडेंट, बट मुझे इनिशियली पहले इन्फॉर्म कर देना कि मैम ये चैप्टर आ रहा है, तो विद इन अ डे मत बोलना कि मैम ये चैप्टर कल आ रहा है क्लास में, आप करवा दो, नॉट पॉसिबल। So our chapter is measure of central tendency, that is arithmetic mean. आप सब लोगों ने मैथ किया 10th में. Now tell me what do you mean by arithmetic mean? Because economics में आपको theory भी आएगी as well as numericals भी आएंगे. तो मुझे ये बताओ what is the meaning of arithmetic mean? किसी को पता है mean क्या है? Mean को हम simple words में arithmetic mean भी बोलते हैं. Am I audible to everyone? Yes. ओके, अब मुझे बच्चों ये बताओ, कोई बता सकता है मीन है क्या? तुम लोगों ने कैलकुलेट किया 10th क्लास में मीन, मीन क्या है? हाँ विनीत, क्या है बच्चे मीन? डोंट हेजिटेट, नहीं आता कोई बात नहीं, जो आता है वो बताओ। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम फ्री हो टू स्पीक एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि आना ही जरूरी है। व्हाटएवर यू नो टेल मी। विनीत, मीन क्या है बेटा? क्या किया था? अच्छा, तुम लोगों ने मीन से रिलेटेड 10th क्लास में क्या स्टडी किया, ये बताओ मुझे। I think 80% of the students got more than 80%, right? So tell me, what do you mean by mean? Yes, Kanak? Ma'am, average. Okay, average. So what you have done in average? Average में कुछ और भी किया बच्चे? Ma'am, with formula sigma xi upon sigma xi. Okay. So you have done the formulas to calculate mean, that is average. Any other one? Sakhi? Sakhi? Yes, ma'am. Yes, Sakhi. You have any knowledge regarding? Ma'am, yes, ma'am. Arithmetic mean formulas, assume mean, direct method. Direct method, assume mean, step deviation, right? Yes, ma'am. ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता है कि मीन से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज को स्टडी किया हुआ है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, assume mean and step deviation. So in economics this information is not sufficient, we have to understand the meaning of mean first. So I am telling you the meaning of mean first. See, I am telling you again and again, if anything is not clear, if there is any kind of query in your mind, do ask it during your class timing, please. ठीक है, मुझे वहीं पे stop करो and please take your query first. Mean, mean which is also called as arithmetic mean, mean which is also called as average. I'm writing the definition first, then I'll tell you the concept of this. It is the single value that represents
the whole data and its value lie within the range of the data. ठीक है बच्चों, डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ. It is the single value that represents the whole complex data and its value lies within the range of the data. I hope my writing is clear to everyone. It's actually bad. That is why I'm asking. Clear है बच्चों? Definition? Yes, ma'am. Okay, note it down, hurry up. अगर किसी को क्लियर नहीं है मुझे बता देना, I'll dictate it. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Now understand the meaning of mean. बच्चों let us suppose हमारी +1 क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब इन 30 स्टूडेंट्स का फर्स्ट टेस्ट हुआ जिसमें सब बच्चों के एवरीबडी स्कोर डिफरेंट मार्क्स. मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट है, टोटल मार्क्स है 50. सम ऑफ यू गॉट 45, सम 46, 47, 20, 25, 30 and so on. Means 30 students will have different marks. Am I correct? 30 बच्चों के सबसे डिफरेंट मार्क्स होंगे, राइट? अब आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम जो टेस्ट हुआ था उसमें आपका मतलब जो स्कोर है, जो एवरेज है, वो क्या रही? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बताना, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स है. तो आपने मुझे बोला कि मैम मार्क्स बताओ क्या है. मैं कहा 30 स्टूडेंट के मार्क्स आई कांट रिमेम्बर, इतने बच्चों के नंबर तो मैं याद नहीं रख सकती हूँ. तो मैंने क्या किया, इन सबकी एवरेज कैलकुलेट कर ली, राइट? हमने क्या किया, इन सबकी एवरेज कैलकुलेट कर ली. एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे बच्चों आप मीन में? Sum of observations upon total number of observations. वेरी गुड. हु हैज गिवन मी द आंसर? Anushka. अनुष्का. अनुष्का गुड. ठीक है, अभी अपना नाम बताते रहना बिकॉज अभी आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई हूँ ना मैं, दैट इज वाई. सो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल ली बाय द फॉर्मूला गिवन बाय अनुष्का, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. लेट अस सपोज माय मीन इज कमिंग आउट टू बी 40. ठीक है, अब मुझसे अनुष्का ने पूछा मैम अब बताओ कितनी परसेंटेज आई? तो मैंने बोला ऑल अराउंड 40%, ऑन एन एवरेज 40%, राइट? देखो अब एक पहले तुम लोगों ने मार्क्स पूछे, आई वॉज नॉट एबल टू टेल यू द मार्क्स. अब मैं बता रही हूँ कि 40 है ये. इट मीन्स 40 जो है वो एक सिंगल वैल्यू है. 40 क्या है? सिंगल वैल्यू. इन द सेम वे मीन क्या है? सिंगल वैल्यू. इस 40 ने ये जो सारा कॉम्प्लेक्स डाटा है इसको क्या किया? रिप्रेजेंट किया. इसको रिप्रेजेंट किया. पूरा होल डाटा था ना, होल कॉम्प्लेक्स डाटा को याद रखना इट इज नॉट इजी. तो उसने उसको सिंप्लीफाई किया और एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया. अब जो भी मीन का आंसर आता है हमेशा याद रखना उसकी वैल्यू लाइज विद इन द रेंज ऑफ द डाटा. ये जो वैल्यू आती है मीन की, इस डाटा के अंदर अंदर उसकी रेंज आएगी. आप कभी नहीं कहोगे अगर यहाँ पे 100 से रिलेटेड मीन नहीं आएगा इन दैट केस. तो यहाँ पे आपकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई? 40. एम आई क्लियर? डेफिनेशन समझ आई? अब दोबारा रीड करो.
मीन क्या है? एक सिंगल वैल्यू है, यानी 48 सिंगल वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को। ये सारे 30 स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी वैल्यू हमेशा रेंज के अंदर अंदर ही लाई करेगी। तो ये हमारी रेंज है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अंदर ही हमारी वैल्यू आएगी। अगर आपको 100 की टर्म्स दी हुई है तो मीन कभी 1000 में नहीं आएगा, राइट? इज इट क्लियर व्हाट इज मीन? बोलो बच्चों, मीन समझ आया डेफिनेशन कि मैं रिपीट करूं? आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। एवरी वन ऑफ यू Understood. अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अनुष्का बोलो। अनुष्का बोलो बच्चे। Yes, ma'am. Understood. ओके दिशा, दिशा क्लियर है? Saki, I am not getting your voice. Saki and Tanvi, I Understood, didn't ma'am. get that. Okay, okay. Saki, okay. Disha, please reply with it. You don't want to reply, so I'll assume it is clear to you. Are they? Clear, ma'am. Okay. Kanna? Yes, ma'am. Okay, done. So, Vineet, clear है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है? So, always remember now, if somebody asks you, what do you mean by arithmetic mean? You won't say it as sum of observations or number of observations, and we have done method, assume, mean, step deviation. This is not the correct answer. These are the methods to solve mean. But what is mean actually? Mean एक single value है. जैसे तुम्हारी क्लास का मॉनिटर होता है ना बच्चों, मॉनिटर क्या करता है? आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना? कि जैसे अब +1 क्लास है, तो +1 क्लास कॉमर्स क्लास है, लेट अस सपोज, तो कॉमर्स क्लास का देयर इज वन मॉनिटर। अब ये मॉनिटर का काम क्या है? मॉनिटर एक सिंगल पर्सन है जो कि अपनी पूरी, मान लो 40 स्टूडेंट्स की अगर क्लास है, तो पूरे 40 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक सिंगल मॉनिटर। और ये जो मॉनिटर है इसकी वैल्यू क्लास के अंदर ही लाई कर रही है। मतलब हमने +1 में +1 का मॉनिटर ही बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि +1 में +2 का मॉनिटर बन गया या 8 क्लास का मॉनिटर बन गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम इसे मॉनिटर से भी रिलेट करो तो तुम्हें मीन की जो डेफिनेशन है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। हमेशा याद रखना 3 टर्म्स हैं बस, सिंगल वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी वैल्यू हमेशा अपनी डाटा की रेंज के अंदर अंदर रहती है, उससे बाहर कभी भी नहीं आती। ठीक है, नोट कर लिया अपनी डेफिनेशन सबने ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next is, as somebody told me, mean is also called as average. Now we have certain type of averages. Mean is also called as average. Next topic is types of averages. Kids, मैं आप लोगों को पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बिकॉज जितने भी 10 से +1 में आते हैं उन लोगों को मीन के एक्चुअल डेफिनेशन, टाइप ऑफ मीन वी आर गोइंग टू स्टडी, वो सब कुछ नहीं पता होता। तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को थ्योरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट्स न्यूमेरिकल। क्योंकि अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जंप करोगे तो फिर वो 10th क्लास से रिलेट हो जाता है और आपको कभी भी ये थ्योरी क्लियर नहीं होगी। So that is why I am clearing with the theory first. So there is introduction of the topic first. Types of averages. We have 3 type of averages. First is positional average. Second is mathematical average. And third is other average. बच्चों नोट करो 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, फिर मैं इसकी फर्दर बाइफिकेशंस बताती हूँ क्या है।
तीन टाइप की एवरेज होती हैं, पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज एंड अदर एवरेज। ये एवरेजेस इसलिए बताई जाती है ताकि अब आपको पता लगे कि जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं उनका डिवीजन किस फॉर्म में होता है। कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, positional average is again bifurcated in two parts. First is your median and second is your mode. I hope you all are familiar with the term median and mode. Mathematical average is bifurcated in three parts. Names are arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. तो होप आप लोगों ने ये तीन टाइप ऑफ मीन नहीं सुना होगा। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल एवरेज थ्री टाइप की है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नाउ नेक्स्ट इज अदर एवरेज। अगर अदर एवरेज को याद रखना है, देयर इज अ वर्ड सीपीएम, या फिर तुम इसे पीसीएम से भी याद कर सकते हो, जो हमारी टैबलेट है पीसीएम। पी मतलब प्रोग्रेसिव एवरेज, सी मतलब कॉम्पोजिट एवरेज, and M means moving average. Right? So this is the main bifurcation, classification of averages. Clear है बच्चों? Whatever I have written on the board, it is visible to everyone. Ma'am, can you repeat the types of other averages? Yeah, sure बच्चे. It is PCM. P stands for progressive average, C stands for composite average, and M is moving average. Done बच्चों? Have you all noted it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So always remember, because our next chapter is based on this positional average. So whenever I'll ask you what is the average of median and mode, it is always positional. ठीक है? Positional average क्या है? Median and mode. Mean को हम लोग positional average नहीं बोलते. Mean क्या एक mathematical term है. So it is mathematical average. Mean तीन टाइप के होते हैं बच्चों, arithmetic, geometric and harmonic. Arithmetic we have done in 10. Even in +1 we will do arithmetic only, because geometric और harmonic mean math में maybe you will do it, but economics में geometric और harmonic mean नहीं है. हाँ, बट जो कॉलेज लेवल पे होता है आपका ग्रेजुएशन में, जब भी बीकॉम और बीए आप इकोनॉमिक्स लोगे तो उसमें आपको ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक दोनों आएगा, राइट? तो ये वाले मीन्स हम लोग कॉलेज लेवल पे करते हैं, इवन मैं भी अपनी बीकॉम क्लासेस में इसे डिस्कस करती हूँ, राइट? तो अरिथमेटिक मीन हम लोग करेंगे, एंड दीज आर सम एवरेजेस हियर, दैट इज प्रोग्रेसिव, कॉम्पोजिट एंड मूविंग. ये सब एवरेजेस का कुछ कुछ पार्ट हमारे कोर्स में है, सारा नहीं है. +1 के सिलेबस में वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल दीज एवरेजेस. वी विल डू मीडियन in a broader form, we will do mode, we will do arithmetic mean and some part of other averages that I let you know whenever we will start with the topic. तो मैं आपको उस टाइम के बताती चलूंगी कि ये कौन कौन सी averages है. Clear बच्चों? So only median, mode and arithmetic mean and some part of other averages we are going to do in +1 syllabus. Is it clear?
Yes, ma'am. ओके, सो ये नोट कर लिया आप सबने ना? Yes, ma'am. Okay. Now, what do you mean by series? सीरीज किया बच्चों आप लोगों ने कभी सीरीज स्टडी किया? व्हाट इज सीरीज? Our next term is series. Series is what? A series may be defined as a thing or attribute of thing arranged in some logical order. Right? Note down its definition. Hurry up. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. So let us understand the meaning of series. Series is what? It may be defined as things or attribute of things arranged in some logical order. देखो बच्चों, series is what? कहते हैं कुछ भी thing या फिर attribute. Attribute मतलब things की कुछ quality. ठीक है? Attributes क्या होते हैं? Qualities of things. जिन्हें हम अरेंज करते हैं एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम यूनिट्स को अरेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है? जितने भी यूनिट्स होते हैं, कोई भी थिंग है, थिंग मतलब ये नहीं कि आप कुछ कमोडिटीज को अरेंज कर रहे हो, इट इज रिलेटेड टू डेटा, इट इज रिलेटेड टू यूनिट्स। उन यूनिट्स को, क्वांटिटेटिव यूनिट जितने भी होते हैं, उन्हें हम लोग अरेंज करते हैं एक लॉजिकल ऑर्डर में। एम आई क्लियर? Is it clear? Should I repeat it? So no one is replying. I'll assume it that it is clear to everyone, right? कोई डाउट नहीं है बच्चों? सीरीज समझ आ गया इसका मतलब आप सबको? Yes, ma'am. Okay. So I have total 7 students present in our class. Anushka, Disha, Hardik, Kanak, Sakhi, Kanya, and Vinay. Now, there are types of series. We have 3 types of series. First is individual series. Second is discrete series. Third is continuous series. पढ़ा है बच्चों ये 3 सीरीज? 10th क्लास में 3 सीरीज पढ़ी है आप लोगों ने? No, ma'am. नहीं पढ़ी? पढ़ी हुई है आप लोगों ने, लेकिन आपको नाम नहीं पता था कि उनका डिवीजन किस फॉर्म में है। जो भी आपने डेटा मीन जहां जहां आपने मीन अप्लाई किया ना, वो सारी सीरीज थी। डिफरेंट क्वेश्चंस में आपने मीन अप्लाई किया, दे ऑल वर सीरीज, but you don't know the name of the series. We have 3 kind of series, that is individual, discrete and continuous. When I discuss them one by one, you will be able to understand that you have done it already. Note karo 3 type of series. Done, ma'am. Individual, done? Yes, ma'am. Done. Okay, everyone has noted it down? Yes, ma'am. All right.
Now let's start with the first series, that is individual series. See why I'm explaining the meaning of all these terms, because in the form of theory questions these terms are usually asked in your paper. They will tell you define series in one word, means in 1 mark question. So you have to define series there. First is individual series. But what do you mean by an individual? Who is an individual? Tell me A who is an single individual? thing. हाँ, a single thing, a single person, a single organization. किसी को भी, मतलब जो भी कोई चीज single होती है, that is individual. Right? Now, individual means single. तो बच्चे इस सीरीज के अंदर every unit has separate measurement. इस सीरीज का फर्स्ट फीचर है कि सबसे पहले ये सिंगल होता है. सिंगल होने की वजह से हर यूनिट का सेपरेट मेजरमेंट है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक यूनिट दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंट है या एक यूनिट दूसरे यूनिट से लिंक्ड है. तो इंडिविजुअल सीरीज की जो आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करोगे कि दिस सीरीज, गिवन सीरीज इज इंडिविजुअल सीरीज और नॉट. It has separate measurement, and the second feature is it has no frequency. You know what is frequency? What is frequency, बच्चों? पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी किया ना 10th क्लास में, क्वेश्चंस के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होता था. मैथ्स का आई थिंक The एनसीईआरटी का number of क्वेश्चन चैप्टर है. times the thing is occurring. Very good. Number of times the thing is occurring, that is called the frequency, right? अब individual series के अंदर एक तो separate measurement होता है और it has no frequency. Note the point. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. Now, अब ये इंडिविजुअल सीरीज याद रखना. इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ so that it will be right, बच्चों. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so individual series, like you have given weights of the class. Question is weights of a class are given. Like we have 60 kg, 45, 100 का भी होगा कोई, 90, 30 का भी होगा, right? So these are the weights of the students of a given class. बच्चों ये सीरीज देखो, इसके अंदर सिंगल यूनिट है. क्या फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन के अंदर? फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन के अंदर? No, ma'am. No. तो इट मीन्स जहां पे सिंगल यूनिट है विद नो फ्रीक्वेंसी, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज. अब मुझे ये बताओ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए ना हमने 10th क्लास में भी? इस टाइप की सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना? सिर्फ सिंगल डाटा गिवन होता था. याद है Yes, कि नहीं? ma'am. तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. मैं आपको हर सीरीज की आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी कि किस तरह से सीरीज को आइडेंटिफाई करना है.
बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको कभी भी मेंशन नहीं होगा कि which series is given in the question. You have to identify it yourself that it is individual, discrete or continuous series, right? Now, next is see we have done arithmetic mean. Now in plus one we are going to solve two types of arithmetic mean. First is simple mean. Second is weighted mean. Simple mean is also called as unweighted. ठीक है, two type of mean we have. First is simple mean, which is also called as unweighted mean, and second is weighted mean. अब बच्चों simple mean में weights are not given. Weights are not assigned to the data. Now in weighted mean, weights are assigned to the data. Right? Note it down. सिंपल मीन और अनवेटेड मीन में वेट्स गिवन नहीं होते डेटा के साथ, और वेटेड मीन में वेट्स गिवन होते हैं, राइट? बच्चों यहाँ तक जो भी मैंने करवाया इट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओनली Kanak is replying. Yes, ma'am. Okay, Anushka. Yes, Disha, ma'am. reply. Yes, ma'am. Even Yes, ma'am. okay, okay, good. ठीक है, तो दो टाइप के मीन है, सिंपल मीन जैसे हम अनवेटेड मीन भी बोलते हैं, और वेटेड मीन जहां पे वेट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन। बच्चों आपको क्वेश्चन में ना What are weights in this sentence? हाँ, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू बच्चे, वही बताने जा रही थी मैं अभी। ये कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बच्चों, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इधर यू हैव गिवन फ्रीक्वेंसी और वेट्स। अगर क्वेश्चन में वेट्स हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। वेट कब होंगे? जब अनवेटेड मीन वेटेड मीन है। फ्रीक्वेंसी कब होगी? whenever there is unweighted mean, means वेट्स नहीं है। अगर वेट्स नहीं है तो मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कनक ने हमें बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ नंबर टर्म कि कितनी बारी ये टर्म अकर कर रही है। वेट्स क्या है बच्चों? इट इज द मास गिवन टर्म। राइट? फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि एक नंबर आपके डाटा में, आपकी सीरीज में कितनी बारी आ रहा है। लेकिन वेट क्या बताता है कि उस सीरीज के अंदर उसका मास कितना है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, कितना वेटेज। जैसे अभी देखो, हम लोग क्या कहते हैं
कि जब सिलेबस आता है तो हम लोग कहते हैं ये चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, इतनी इतनी अकरेंस पे है ये। वेट्स क्या होते हैं, उसके मार्क्स गिवन होते हैं ना हम लोगों को कि इसका वेटेज क्या है हमारे पास, एक 10 मार्क का है, 5 मार्क का है, 12 मार्क का है। सो दीज आर द वेटेज जो आपको हर चैप्टर की असाइन की हुई है। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक टॉपिक आपका एक चैप्टर में कितनी बारी रिपीट हो रहा है, राइट, कितने इंटरवल्स पे, क्या अकरेंस है उसकी जो पूरे डेटा के अंदर रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि मीन हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर कितनी बारी स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। लेकिन मीन कितने नंबर का आ रहा है, 10 मार्क्स का आ रहा है, दैट इज वेट। एम आई क्लियर? यस बच्चों, समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेट? मैम क्या आप बता Yes, सकते हो ma'am. हाँ बच्चे बोलो। कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और कब वेट्स कम होते हैं, या कब वेट ज्यादा होते हैं कब फ्रीक्वेंसी कम होती है? बेटा देखो होता क्या है क्वेश्चन के अंदर, जब आप सीरीज करोगे तो सीरीज के अंदर जो मैंने आपको 3 टाइप ऑफ सीरीज बताई है, दैट इज इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, तब आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। एक सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ऐसी है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। लेकिन जब भी वेटेड मीन आएगा, वेटेड मीन का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन होगा कि वेट्स आर गिवन टू द डाटा, वेट्स गिवन होंगे, वहां पे फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली वेट्स वर्ड यूज होगा वहां पे। समझ आया बच्चे? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सीरीज में नहीं होती, बाकी 3 सीरीज जो रेस्ट 2 सीरीज है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, दोनों में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। ओके, नाउ आई टोल्ड यू अबाउट 3 सीरीज। हम लोग जो ये सीरीज स्टडी कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर सिंपल मीन व्हिच इज अनवेटेड मीन। So in this case, you will never get any kind of weight in the question. Simple mean में we are going to study 3 type of series. First is individual. Second is discrete. And third is continuous series. Individual series में no frequency, I told you. There is involvement of no frequency. ठीक है, क्लियर है? देखो अब क्वेश्चन समझ आया, अभी फॉर्म समझ आई। सिंपल मीन को अनवेटेड बोलते हैं, अनवेटेड है तो टाइप ऑफ सीरीज है जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। इन 2 सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगी, वेट्स इसमें भी नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, दैट इज व्हाई दिस सीरीज is called as ungrouped series, right? Individual series is also called as ungrouped series or ungrouped data, as there is no involvement of any frequency. But these 2 series, there is involvement of frequency, they are called as grouped series. Right? क्लियर है बच्चों? Ma'am, please repeat. यस श्योर बच्चे, मैंने बोला सिंपल मीन, देखो आई हैव कम बैक फ्रॉम द बोर्ड नाउ, सो ताकि मैं ये चेक करते रहूं आपको फोन पे क्लियर है, प्रॉपर विजिबल है, बोर्ड नहीं। सिंपल मीन, देखो सिंपल मीन को हम लोग अनवेटेड मीन भी बोलते हैं। अनवेटेड मीन वो मीन होता है जिसमें वेट्स नहीं होते, तो वेट्स नहीं होते तो क्या होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी होगा। अब इस अनवेटेड मीन में हम लोग 3 सीरीज को स्टडी करेंगे, जो कि है फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड डिस्क्रीट, थर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन तीनों में से एक सीरीज है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती।
तो इसीलिए उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती. दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज ग्रुप सीरीज. एम आई क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बच्चे दो सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इन दोनों सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है. सी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, फ्रीक्वेंसी है ब्रैकेट बना के. सो दैट इज व्हाई दीज टू सीरीज आर कॉल्ड एज ग्रुप सीरीज. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. ठीक है बच्चों, ऑलवेज रिमेम्बर, आज जो मैं सीरीज आपको करवा रही हूँ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, ये आपका बेस है फॉर ऑल स्टैटिस्टिकल. इंडिविजुअल से ये जो सीरीज मैंने 3 बताई है ये सिर्फ यही काम आएंगी. तो इट्स नॉट लाइक दैट. हर चैप्टर के न्यूमेरिकल में यू शुड हैव नॉलेज ऑफ सीरीज, और हर टॉपिक में सीरीज सेम रहेंगी, बट द वे ऑफ फाइंडिंग द क्वेश्चन विल डिफर. सीरीज विल रिमेन सेम. इंडिविजुअल, हमारे पास सिर्फ 3 टाइप की ही सीरीज होती है मेजर जो है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस. कुछ स्पेसिफिक सीरीज भी है, वो आगे करेंगे कौन कौन सी आती है. बट अभी के लिए जो यूनिवर्सल सीरीज है ना 3, वो यही है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस. इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंगल यूनिट होता है, सिंगल डाटा होता है, और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी होती है. अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनी माइन्यूट प्रॉब्लम इन योर माइंड, एनी क्वेरी बच्चों? No, ma'am. ठीक है, मैं अभी का टॉपिक रिपीट कर रही हूँ. व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मीन. मीन इज व्हाट? कौन बता सकता है मुझे मीन क्या है? विदाउट लुकिंग इनटू योर नोटबुक, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीन? मुझे सिर्फ सिंपल 3 टर्म्स बता दो मीन क्या है. डोंट टेल मी द एंटायर डेफिनेशन, सिर्फ ये बता दो मीन होता क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो. हाँ विनीत, कैन यू टेल मी बच्चे? विनीत Yes, बच्चे ma'am. मीन, बच्चे मीन Ma'am, क्या होता है? other average, mathematical average and provisional average. नहीं बच्चे, विनीत मुझे आपने मीन की जो मैंने डेफिनेशन समझाई है ना, वो बताओ मीन क्या होता है. अगर अब आपसे कोई पूछे कि विनीत आज आपने क्लास में क्या किया, मीन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? Okay, ma'am. Ma'am, it is a single value that repeat the whole data and its value lies within the range of the data. विनीत नोटबुक में देख के तो नहीं बोला? No, ma'am. ठीक है, वो रिपीट नहीं है बच्चे, राइट इट रिप्रेजेंट. Okay, ma'am. यस अनुष्ठा, Yes, ma'am. व्हाट इज बेटा? It is a single value which represents the whole data and its value lies between the range of the data. हाँ वेरी गुड. तो मीन क्या है? इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल डाटा एंड whose value lies within the range of the data. Right बच्चों? Mean is also called as average. So Kanak, how many type of averages we have beta? Ma'am, Kanak, ma'am, yes, we ma'am. have 3 types of averages: yes, name them. potential, mathematical, and other averages. You said potential or positional? Positional, sorry, ma'am. Yes, positional, mathematical, and other average. Right? Disha, what are the 2 bifurcations of positional average? Median and mode. हाँ बोलो. Median and mode. Very good. Hardik, what are the 3 types of mathematical average? Ma'am, geometric mean, arithmetic mean, and harmonic mean. Very good. Sakhi, name the other averages. And the other averages are progressive average, composite average, and moving average. And moving average. Correct. Okay. Tanvi, what is series? Ma'am, it is it is arranged in a logical order. It is which is a thing or attribute of things. Very good. Okay. So who is left now?
Vineet, how many type of series we have? Ma'am, we have Vineet, you are turning on your pages, huh? no, Yes, ma'am. Vineet. कोई बात नहीं, देख के भी बोलो, it hardly matters because this is your first class. You have to understand each and every term. So don't worry if you're speaking by looking into your register, that is okay with me. हाँ विनीत बोलो कितने टाइप ऑफ सीरीज है? Vineet, am I audible beta? Yes, ma'am. Ma'am, 2 types. सीरीज विनीत, सीरीज कितने टाइप की हैं? अभी तो बोर्ड पे भी शो हो रही है सीरीज विनीत. Yes, ma'am. 3 types, ma'am. Name them. Individual, discrete, and continuous. Continuous. Very good. Individual, discrete, and continuous series. Okay. So Anushka, what is individual series? It is a series which has no frequency and every unit has its separate measurement. Very good. Okay. So, yes, Disha, what is the other name for individual series? Disha? Disha, am I audible to you? Disha, it is written on the board. Yes, Kanak, tell me, what is the other name for individual series? Ma'am, unweighted. Unweighted, right? Saki? Ungrouped series. Yes, ungrouped series, unweighted. These all series come under unweighted name, right? Okay. Why individual series is called as ungrouped series? Ma'am, because it doesn't have any frequency. Very good. Now, next comes the method of finding mean in individual series. We have already discussed what is individual series. Every unit has separate measurement and there is no frequency, single units are present. Now, methods of mean in case of individual series. ठीक है? We have 3 methods to calculate mean. बच्चों mean को represent किससे करते हैं? सिंबल याद है? मीन का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल क्या है? Sigma. बोलो. Sigma. Sigma. Sigma stands for, this is the sigma na? Sigma stands for summation, which is total of something, sum total. Mean is represented by x bar. Done? Mean is represented by x bar. Always remember. Now we have 3 methods to calculate mean in case of individual series. First is direct method. Second is shortcut method, which is also called as assumed mean method. And the third one is step deviation method. Now, one thing to remember is this. If you apply any one of method among all, you will get the same answer, right? चाहे आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, चाहे शॉर्टकट करो, चाहे स्टेप डेविएशन करो, मीन का आंसर ऑलवेज सेम आएगा. अगर इससे 10 आ रहा है, इससे भी 10 आएगा, इससे भी 10 आएगा, right? So always remember we have 3 methods to calculate
Mean in case of individual series, direct, shortcut, which is also called as assume mean, and the step deviation method. ठीक है, इसे note करो. Then I'll tell you the formula of every method. Done. Noted, ma'am. Okay, beta. Okay, बच्चों. So first is direct method. I'm erasing it. Remember this method is only in case of individual series. किसी और series में से apply मत करना, सिर्फ individual series में. Mean is represented by x bar. अब आप लोगों ने सबसे simplest formula क्या किया था mean निकालने का 10th class में? मुझे किसी ने बताया भी था. बोलो. Sigma Sigma fi xi upon sigma xi fi. No. Sigma fi xi upon sigma fi. नहीं. That is Sum incorrect. of observation upon total number of observations. हाँ, sum of observations upon total number of observations. अब एक चीज याद रखना बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर नहीं था कि आप इंडिविजुअल सीरीज कर रहे थे जब भी आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या डिस्क्रीट कर रहे हो या कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो. अब इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हिच सीरीज यू आर गोइंग टू डू, राइट? सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में जिसने भी बोला fi means frequency, and I told you in the beginning there is no involvement of frequency in individual series. Am I correct? तो frequency वाला यहाँ पे यूज ही नहीं हो सकता, right बेटा? So formula is sum of observations divided by number of observations. ठीक है? Now the thing is, in +1, we will give this formula some symbolic representation. How? Sum matlab, this is what? This is what? Sigma. Sigma stands for summation. So for sum, we have symbolized it with sigma. Observations के लिए, let us suppose we have x observations. So we will write here sigma x, and number of observations के लिए we will write n only. So instead of this formula, now you will be using this formula. Although दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों का जो मीनिंग है, जो पर्सपेक्टिव है सॉल्व करने का, वो बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ वर्ड्स में ना आके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, अगर गलती से ये फॉर्मूला लगाया है तब भी इट इज करेक्ट, बट दिस इज द डायरेक्ट मेथड. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. एम आई क्लियर? अब Yes, चाहिए ma'am. ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों से आंसर ठीक है, दोनों कंसीडर किए जाते हैं +1 कोर्स में, लेकिन हम लोग मोस्टली इसे यूज करते हैं, सिग्मा x अपॉन n. दैट इज द डायरेक्ट मेथड. ठीक है, नोट इट डाउन. Done, ma'am. ओके, सो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा. Now, you know how to apply this formula. So first, I am discussing individual series. Individual series में there is no involvement of frequency. देखो क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं होगा कि individual series given. हाँ, they will mention you the method. कि solve it by direct method, right? They will mention you that solve the question by direct method or by shortcut or by step deviation, but they will never give you that this is individual series and solve it by direct method. Series you have to identify yourself. Now let us suppose we have one question. Find
the mean of weights of following students (40, 60, 50, 100). Again it is 50. Now अब देखो इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिंगल डेट है, इट मींस इंडिविजुअल सीरीज है। अब हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया, ये आप आराम से कर सकते हो। यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लगा सकते हो। आई एम यूजिंग सिग्मा x अपॉन n। सो लेट अस सपोज इट टू बी x। मैंने इस सीरीज को क्या ले लिया, x ले लिया। अब आपको शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हो और शो भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। सो इट इज 100, 200, 300। 300 इसका सम आ गया ना, सिग्मा x, मतलब x का आपने क्या करना है, टोटल करना है। ये आपने 10th क्लास में किया है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। एक्सक्यूज मी मैम, यस बच्चे, मैम उसमें 50 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही 50 की 2 no टाइम्स? no no no, it is not like that. This is only your individual series. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का केस डिफरेंट आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी 10th क्लास में किया है ना, उसे बिल्कुल क्लियर कर दो, बिकॉज वहां पे आपने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखते थे और फॉर्मूला अप्लाई करते थे, आपको ये भी नहीं पता था सीरीज कौन सी है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सो इन दिस केस जो भी आपको क्वेश्चन है ना, सिर्फ सिंगल, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड दिया ही नहीं हुआ, तो आप वहां पे फ्रीक्वेंसी एज्यूम नहीं करोगे, यहाँ आप टेलीमार्क्स नहीं लगाएंगे, राइट? सो दिस इज सिंपल, इट इज 60 इज द आंसर मी। क्लियर? This is your mean by direct method in case of individual series. कर लिया नोट? Yes, ma'am. Okay. Now second method is shortcut method or assume mean method. Same question लेते हैं। Shortcut method का other name assume mean. You all know this. Formula is, देखो assume mean है ना, तो इसका फॉर्मूला A से स्टार्ट होगा, A plus sigma D upon N. Do not write frequency here because in individual series there is no involvement of frequency, right? कहीं FD मत लिख देना जो 10th क्लास में याद किया था आप लोगों ने। फॉर्मूला नोट करो, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, सेम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सा मेथड अप्लाई करने के लिए। फॉर्मूला नोट कर लिया? Yes, ma'am. सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चा जब भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे ना, ये जो हॉरिजॉन्टल डाटा है इसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, here A stands for assume mean. A किसके लिए है? Assume mean, which we will assume ourselves. N stands for number of terms, number of observations. Sigma you all know, it is summation, and D stands for deviations. डेविएशन का फॉर्मूला है x माइनस a। देखो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब हमने किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है आप लोगों ने, लेकिन एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं पता था आप लोगों को कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है
कौन सा फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ये मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। सो अगर सीरीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, यू विल गेट कंफ्यूज व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चन, राइट। कर लिया नोट ये? कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी फर्स्ट नीड ए इज व्हाट, एज्यूम मीन। अब हम इस x में से किसी एक टर्म को एज्यूम मीन लेंगे, मींस हम एज्यूम करेंगे दैट दिस इज आवर मीन, राइट। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग मिडिल टर्म को क्या लेते थे, एज्यूम मीन। यही पढ़ा हुआ है ना, मिडिल टर्म को एज्यूम मीन लेते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट अकॉर्डिंग टू मी आप कोई भी टर्म ले लो, आंसर हमेशा सेम आता है। मैं हमेशा स्मॉलेस्ट टर्म लेती हूँ। व्हाई? बिकॉज इससे क्या होता है, आपकी जो डेविएशंस आएंगी ना वो सारी पॉजिटिव आएंगी। तो हमें नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला को प्लस करना है, फिर माइनस करना है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, स्कूल में कई बार टीचर्स कहते हैं नहीं जी मिडिल टर्म ही लेनी है, तो दैट इज अप टू द स्कूल। अगर आप वैसे चलना चाहो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट टर्म लोगे ना तो डेविएशंस नेगेटिव आती ही नहीं है। तो आई विल एज्यूम 40 बिकॉज़ स्मॉलेस्ट टर्म क्या 40, सो 40 को मैं अपना एज्यूमिंग ले रही हूँ a। नाउ नेक्स्ट कम्स d, d इज व्हाट, x minus a। आई होप ये स्टेप सबको आता होगा, x में से a माइनस करना है। कोई ऐसा जिसको स्टेप ना आता हो बोलो, क्लियर है स्टेप? Yes, ma'am. डी कैसे फाइंड किया, क्लियर है विनीत? Yes, ma'am. ऑलराइट, नाउ सिग्मा डी, यानी डी का क्या करना है, टोटल करना है। इसका टोटल करके देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव आ गई ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस करना है। 100 आ गया। नाउ अप्लाइड इनटू द फॉर्मूला, a is 40, sigma d is 100, n is number of terms 1 2 3 4 5. Again my answer is coming out to be 60. See, it is clear? Yes, ma'am. So every time all the three methods will give you same answer in their respective series. इंडिविजुअल वाला इंडिविजुअल में आंसर करेक्ट देगा, ये मत कहना कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट में हमने 3 मेथड अप्लाई किए लेकिन इंडिविजुअल वाला आंसर नहीं आ रहा, दैट इज रॉन्ग। तो सीरीज से रिलेटेड 3 मेथड्स ऑलवेज करेक्ट आंसर, सेम आंसर देंगे। So have you done this formula in your 10th course? टेंथ में तो नहीं किया होगा बच्चों ये वाला फॉर्मूला? No, ma'am. ओके, कर लिया नोट? कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next is the third formula, step deviation. Third formula is, method is step deviation. बच्चों स्टेप डेविएशन को याद रखने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, शॉर्टकट याद होना चाहिए आपको। अब जैसे ही आपको शॉर्टकट याद होगा
जब भी ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है ना, इसी शॉर्टकट मेथड में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे। जहां डी डैश होता है वहां पे हम लिखते हैं डी होता है वहां पे हम लिखते हैं डी डैश, और अगर डी डैश है तो इनटू आई भी आता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको आप इनटू आई भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, राइट। सेम शॉर्टकट मेथड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करो, d will become d dash, wherever it is d dash then it will be multiplied by I, C और h। I मतलब इंटरवल, C मतलब कॉमन फैक्टर, h मतलब हाइट, राइट। नोट द फॉर्मूला। हम लोग यूजुअली आई यूज करते हैं, कुछ बुक्स में आई है, कुछ में सी है, कुछ में एच है, बट मैं यूजुअली आई यूज करती हूँ। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इनमें से। Yes, have you all written it? Yes, ma'am. Okay. Now we will be solving same question by step deviation method. Right? Same question we are going to solve with step deviation method. Now in this formula, you know what is A? It is assume mean N. It is your number of terms. D dash. D dash क्या होता है बच्चों? X minus A over I. ठीक है, I मतलब इंटरवल जो भी गैप होता है, या फिर तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो d ओवर i। दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो d डैश के लिए। Who is not present? Anushka, Disha. Clear बच्चों? d dash is x minus a over I, or you can directly use d over I because you have already calculated d in your shortcut method. Divide this d by I, you will get your d dash. See how we will solve it. अब इस क्वेश्चन में मेरा d ऑलरेडी निकला हुआ है, so I will find d dash directly by applying my formula d over I. ठीक है बच्चों, ये I कैसे लोगे आप? I कैसे लेना है? ऑलवेज रिमेम्बर, जो आपका d होता है ना उससे चेक किया करो कि d जो है कौन सी टर्म से डिवाइड हो रहा है। ये d किससे डिवाइड हो रहा है? x को मत लेना, यूजुअली 10th क्लास में आप x को देखते हो, d को देखना, d से ज्यादा इजी हो जाता है। d किससे डिवाइड हो रहा है? होल टर्म 10, so our I will be 10 here। ठीक है, 10 से इसे डिवाइड करते हैं, 0 2 1 6 1, total will be 10 because we need summation of d dash here. Is it clear? मैम d डैश दोबारा बताना कैसे आया? d dash बेटा, d dash is what? मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखाया था अभी d dash का। d dash is x minus a upon I। अब x minus a क्या है? x minus a is equal to d, so it is d over I। Either you can use this or this। Clear? Yes बच्चे, it is clear? यस मैम। Okay. Now यहाँ पे मैंने d dash calculate किया दिया d upon I because I have already calculated d here। I को कैसे लेना है? I को usually तुम लोग 10th क्लास में x को देख के लेते थे, बट अगर d को देख के लोगे ना तो it will be more easy for you। तो यहाँ पे हम लोग d देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से, सारी टर्म्स 10 से डिवाइड हो रही है, तो I have taken d 10 here। I as 10, 10 से डिवाइड किया इसको, टोटल इज 10। नाउ इवैल्यूएट द टर्म्स इन योर फॉर्मूला। A is what? 40,
sigma d dash, it is 10, n is 5, I is 10. Again mean is 20. See, मैम yes beta. मैम ये जो 0, 20, 10 और ये सब आए हैं मैम वो कैसे आए हैं? कौन से 0, 20, 10, 60? यस मैम। बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस ए, d का फॉर्मूला लगाया ना हमने, d डेविएशन निकाली है, d स्क्वायर x माइनस ए, x में से a को माइनस करना है, a क्या लिया 40, पहली टर्म देखो x है, पहली टर्म x क्या 40, 40 में से 40 माइनस किया, फिर 60 में से 40 माइनस किया, x माइनस a है ना, फिर 50 में से 40 किया, 100 में से 40 किया, 50 में से 40, देखो d आ गया। ये हम लोग शो नहीं करते, ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं डेविएशंस। क्लियर है बच्चे? यस कर लिया नोट? ओके, अब मुझे ये बताओ तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड या कोई भी स्टेप विच इज नॉट क्लियर टू एनीवन। हाँ बोलो बच्चों, डोंट हेजिटेट, कोई भी डाउट है आई विल एक्सप्लेन द मेथड, आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस अगेन, कोई भी डाउट है तो, बिकॉज ये तुम्हारा बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, अगर इसमें गलती करोगे ना फिर आगे के क्वेश्चंस इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो फिर वो सॉल्व करना टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए बेसिक क्लियरेंस बहुत जरूरी है। मैम ये In थर्ड today's- वाला थोड़ा समझ नहीं आया। कौन से वाला बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड? यस मैम। ठीक है, मैं ये पूरा क्वेश्चन दोबारा कर रही हूँ स्क्रीन पे। देखो बच्चे, सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू आई, ठीक है, आई बी सी बी एच बी, आई लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों क्वेश्चन बोलना क्या था, 40, 60, 50, 100, 50. 50, 100, 50, राइट। अब बच्चे सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने a निकालना है, a इज एज्यूम मीन, तो इसमें से कोई भी टर्म एज्यूम मीन ले सकते हो। मैंने 40 को एज्यूम मीन ले लिया, मैंने बताया था रीजन कि व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस टर्म, यू कैन टेक 60, 50, 100, 50 एनी टर्म, सबसे आंसर सेम आता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट d डैश। d डैश का फॉर्मूला क्या है बच्चे, आपने शॉर्टकट में किया था x माइनस a, d डैश है तो डिवाइडेड बाय i आएगा, x माइनस a शॉर्टकट में किसका फॉर्मूला है, d का, तो यहाँ ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो। हाँ बोलो, क्लियर है बेटा यहाँ तक? कनक भी पूछा था बच्चे वैसे दोबारा? यस मैम। हाँ कनक बोलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, अब ma'am. d dash कनक या तो ये फॉर्मूला लगा लो या ये लगा लो, कोई भी लगा लो, मतलब दोनों केसेस में आपको d निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे d निकाल रही हूँ सबसे पहले। d कैसे निकालेंगे, x माइनस a। अब किसी ने पूछा था x माइनस a वाला स्टेप कैसे आया, मैंने बताया था कि हमने x में से अपना एज्यूम मीन हर इंडिविजुअल टर्म के लिए माइनस करना है, बिकॉज मैंने आपको कहा था इंडिविजुअल सीरीज में हर यूनिट की सेपरेट मेजरमेंट है, बोला था ना मैंने आपको, तो हर एक यूनिट का सेपरेट मेजरमेंट फाइंड आउट करोगे आप,
देखो 40 में से पहला टर्म है x और हमारा एज्यूम मीन भी क्या है, वो भी 40 है, तो 40 में से 40 माइनस किया इट इज 0। 60 में से फिर से x माइनस a अप्लाई करेंगे, इट इज 20। 50 में से 40 गए, इट इज 10। 100 में से 40 गए, इट इज 60। 50 में से अगेन 40, इट इज 10। इज इट क्लियर टिल हियर कनक? यस मैम। ठीक है, मैं ये हटा रही हूँ बिकॉज ये हम शो नहीं करते हैं कभी भी। दिस इज द डायरेक्ट कैलकुलेशन ओनली। हाँ, यू कैन राइट A. Now in this question, in this method beta, we have to find D dash because D नहीं चाहिए हमें, D dash चाहिए। तो D dash कैसे निकलेगा मतलब D upon I। हम ऑलरेडी x माइनस a, देखो तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे और अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों मेथड करेक्ट है। मैंने अभी अलग अलग करके दिखा दिया, सेम चीज हम डायरेक्ट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बता देती हूँ। d ओवर i। अब मैंने कनक बताया कि i किसको देख के लेना है, किसको देख के लेना है, i x को कि d को? एक्स को। x को लेके भी ले सकते हो, d को लेके भी ले सकते हो, दोनों में से आंसर करेक्ट आएगा। d ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, तो d को देखो, d किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो i को क्या ले लिया यहाँ पे बेटा मैंने, 10। ठीक है, तो ये i को डिवाइड करते चलो हर यूनिट से। 10 10 10 से सबको डिवाइड कर देंगे। कनेक्ट किया है बेटा ये वाला स्टेप? यस मैम। अब देखो, अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब d निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली d डैश निकालो। d डैश कैसे निकालोगे, x माइनस a ओवर i। तो ये माइंड में रखना, 40 में से 40 माइनस किया 0, 0 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ पे ये सारी टर्म्स 10 से डिवाइड हो रही है, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 इट इज अगेन 0। क्लियर? ये डायरेक्ट मेथड है करने का। Then 60 minus 40 it is 20, 20 divided by 10 it is 2, 50 minus 40 10, 10 divided by 10 it is 1, 100 minus 40 60, 60 divided by 10 it is 6, 50 minus 40 it is 10, 10 divided by 10 it is 1। Is it clear beta? यस मैम। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे पहले d निकालो फिर d डैश निकालो या डायरेक्टली d डैश निकाल दो, राइट? नाउ इसे अभी हटा देते हैं, अब कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा डी डैश। सिग्मा डी डैश मतलब डी डैश का टोटल, डी का टोटल नहीं चाहिए, डी डैश का टोटल चाहिए, इट इज 10। ए कितना था कनक? 40। 40। सिग्मा डी डैश 10। n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। i कितना लिया था हमने? 10। बस इसे सॉल्व कर लो। देखो कनक, नाउ इट इज क्लियर, और अगर अभी भी डाउट है तो मुझे बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हाँ बच्चे, ठीक है, एवरी स्टेप शुड बी इन योर माइंड, एवरी स्टेप शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अभी भी बता दो किसी को किसी और मेथड में या इसी मेथड में कोई डाउट है दोबारा? से यस और नो। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So in today's class, we have discussed 3 methods related to individual series. First is direct method, second is shortcut, third is step deviation method, and some introductory theory related to arithmetic mean. So kindly go through all the pages we have done today. I'm giving you one question as your homework. Priyanka ma'am. Yes, ma'am.
Yes, Okay, ma'am. in this assignment, I have mentioned at the top that this is individual series. Just for your convenience, फिर आगे के further जितने भी assignments होंगे उसमें mention नहीं होगा, right? So, related to individual series, we have 6 questions in all in this assignment. अब मुझे ये बता दो, honestly, तुम लोग 6 के 6 try कर सकते हो या फिर मैं कम दूं? Because it is up to you. It's your first class. So you will decide what will be your homework. Bolo. And we can try 6. Okay. So those who can try all the 6 questions, but not by the method mentioned in the question, you have to apply all the 3 methods: direct, shortcut, and step deviation in all 6 questions. So you have to do one question for 3 times, right? Do try the questions. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ना, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 हाउसहोल्ड्स आर दिस कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। बच्चों देखो मेथड मेंशन है लेकिन सीरीज तो मेंशन नहीं की हुई ना। अब तुम लोग एज्यूम करो, तुम लोग आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट है और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो इट मींस इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल सीरीज, राइट। इन सेकेंड क्वेश्चन फाइंड एवरेज बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो लेकिन मेथड आपको जरूर मेंशन होगा। अगर इन एनी केस क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है, देन यू कैन अप्लाई एनी मेथड, राइट, बट ऑलवेज अब +1 कोर्स में मेथड आपको लिखा हुआ आता है। सो ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, बाय ईच एंड एवरी मेथड यू विल गेट द सेम आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेपर प्लीज, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। Everyone, please take the screenshot. Yes, have you all taken it? Yes. Okay, do try the questions. कोई limit नहीं है, मतलब if you want to try one single question, that is up to you. बाकी के जो होंगे फिर वो आपके लिए पेंडिंग वर्क है। हाँ, अगर नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके रखना। मैंने तभी एक क्वेश्चन तीनों मेथड से आपको करा दिया, बट इन ईच क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू अप्लाई ऑल द 3 मेथड्स, right? I hope today's topic is clear to everyone. Take care. Bye bye. Yes, ma'am. We meet in the next class, right? Beta? Thank you, ma'am.